1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मार्क 11 चैप्टर 27 वर्स से 12 चैप्टर 1 वर्स से 17 वर्स। नंबर्स 18 चैप्टर और 19 चैप्टर। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 27 वचन और वहाँ से लेकर 12 अध्याय के 1 वचन से 17 वचन तक पढ़ते जाएंगे। गिनती की पुस्तक 18 अध्याय 19 अध्याय हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा हमारी मदद करो। ये महान समय है कि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। हम स्वर्गदूत की आवाज़ सुन सके। खुदा, हमारे आत्मा के कान खोलो परमेश्वर। हम तेरे स्वर्गदूत की तुरही को सुन सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपका वायदा है, आपका वचन है। तुरही फूंकते ही हम उठा लिए जाएंगे। पिता परमेश्वर, तुरही की आवाज़ जो परमेश्वर तेरे स्वर्ग की आवाज़, पिता हमें परमेश्वर स्पष्ट समझ में आने की हमारे रास्ते खोलो। पिता हमारे पाप और अधर्म को पिता परमेश्वर डील करो, निपटिए पिता परमेश्वर। हमारे सारे गलती गुनाहों को पिता सामना कीजिए और हमें पिता शुद्ध मन दीजिए, सीधे रास्ते दीजिए, ताकि पिता हम वो अवसर खोने ना पाए। खुदा, हम चाहे जो भी हो, चाहे जहाँ भी हो, पिता हम वो अवसर खोने ना पाए। खुदा परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं नासरी यीशु मसीह के नाम में, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे मार्क 11 चैप्टर 27 वर्स से। And they came again to Jerusalem, and as he was walking in the temple, there come to him the chief priests and the scribes and the elders, and say unto him, By what authority dost thou these things? And who gave thee this authority to do these things? And Jesus answered and said unto them, I will also ask of you one question, and answer me, and I will tell you by what authority I do these things. The baptism of John, was it from heaven or of men? Answer me. And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven, he will say, Why then did ye not believe him? But if we shall say of men, they feared the people, for all men counted John that he was a prophet indeed. And they answered and said unto Jesus, We cannot tell. And Jesus answering said unto them, Neither do I tell you by what authority I do these things. Chapter 12, the parable of the vineyard, touching the paying of tribute. First verse say, And he began to speak unto them by parables. A certain man planted a vineyard, and set an hedge about it, and digged a place for the wine fat, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country. And at the season he sent to the husbandman a servant, that he might receive from the husbandman of the fruit of the vineyard. And they caught him, and beat him, and sent him away empty. And again he sent unto them another servant, and at him they cast stones, and wounded him in the head, and sent him away shamefully handled. And again he sent another, and him they killed, and many others, beating some and killing some. Having yet therefore one son, his well beloved, he sent him also last unto them, saying, They will reverence my son. But those husbandmen said among themselves, This is the heir, come, let us kill him, and the inheritance shall be ours. And they took him and killed him, and cast him out of the vineyard. What shall therefore the Lord of the vineyard do? He will come and destroy the husbandmen, and will give the vineyard unto others. And have ye not read this scripture? The stone which the builders rejected is become the head of the corner. This was the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes.
and they sought to lay hold on him, but feared the people, for they knew that he had spoken the parable against them. And they left him and went their way. And they sent unto him certain of the Pharisees and of the Herodians to catch him in his words. And when they were come, they say unto him, Master, we know that thou art true, and carest for no man, for thou regardest not the person of men, but teachest the way of God in truth. Is it lawful to give tribute to Caesar or not? Shall we give or shall we not give? But he, knowing their hypocrisy, said unto them, Why tempt ye me? Bring me a penny, that I may see it. And they brought it, and he said unto them, Whose is this image and superscription? And they said unto him, Caesar's. And Jesus answering said unto them, Render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. And they marveled at him. मरकुस 11 अध्याय 27 वचन से हम पढ़ेंगे। यीशु के अधिकार का प्रश्न। वे फिर यरूशलेम में आए, और जब वह मंदिर में टहल रहा था तो प्रधान याजक और शास्त्री और पुरनिये उसके पास आकर पूछने लगे, तू ये काम किस अधिकार से करता है, और यह अधिकार तुझे किसने दिया है कि तू ये काम करे? यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? मुझे उत्तर दो। तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों नहीं की? और यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से, तो लोगों का डर है, क्योंकि सब जानते हैं कि यूहन्ना सचमुच भविष्यद्वक्ता था। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। दुष्ट किसानों का दृष्टांत 12 अध्याय। दुष्ट किसानों का दृष्टांत। पहले वचन से, फिर वह दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया, और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाख की बारी के फलों का भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा, उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा, उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा, उनमें से उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाख की बारी दूसरों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा, जिस पत्थर का जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि उसने हमारे विरोध में यह दृष्टांत कहा है। पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। कैसर को कर देना। 13 वचन से आगे।
तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दे या ना दे? उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? 1 दीनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। वे ले आए और उसने उनसे कहा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, हमें इन वचनों से सच्चाई का सामना कराइए, झूठ को तोड़ डालिए, धोखा और झूठ हमारे सामने से बेनकाब कर दीजिए। हमें असलियत और सच्चाई को सामना कराइए, ताकि परमेश्वर का भय हम में बढ़ता जाए और हम परमेश्वर के आगमन को खोने ना पाए। पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि नासरी यीशु के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।